So yesterday we have concluded introduction of acids and bases, how you are going to identify an acid and a base by using special type of indicators and universal indicators, etc. So what are strong acids, what are weak acids, and what are strong bases and what are weak bases, we have already done with that. So in today's lecture we are going to do chemical properties of acids and bases. So what does chemical properties means? Chemical properties of acids and bases. First of all, we are trying to get up with what actually chemical properties mean. Chemical properties are those properties which tells you how a given substance is going to react with other substance. If they are going to react, how they are going to react, and if they are not going to react, then why. अगर कोई सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा. अगर करता है तो कैसे करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा. अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, वो सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा. ठीक. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल. ठीक है सर. जब भी कोई एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है आपको. कैसे देता है उस पर हम अभी देख लेंगे. सी, पहले मैं एसिड का देख लूंगा. एसिड और बेस दोनों का ये एनालॉजी रहेगा. जैसे एसिड प्लस मेटल गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल. एसिड का HCl ले लीजिए आप. HCl प्लस जिंक, आपको साल्ट मिलेगा जिंक क्लोराइड के फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन. सी, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो इसी चैनल पे हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करके उसमें सिखाया था बैलेंस करना. आप यूट्यूब चैनल पे जाएगा DD कशिर के, उसमें आप देख लीजिएगा. आपको बैलेंस कैसे करते हो वो मिलेगा. If still you find any confusion, you can contact us on this contact number 9797228843. We can solve your issue, every question. Okay. Now, see, is this equation balanced? Chlorine, there are two chlorines, so you can write about 2 over here. Okay, now it's balanced. Hydrochloric acid is an acid. When it reacts with a metal, it gives you salt plus hydrogen gas. Likewise in the base also. Base also reacts in the same way. Base plus metal, salt plus hydrogen. Okay, so we are going to do it this way. See, base plus metal, salt plus water. Okay. See, we are going to write a base over here. It is NaOH plus zinc. What does it gives you? Na2ZnO2 plus H2. Is it? So this is sodium zincate. When you let a base react with a metal, it always gives you a salt, sodium zincate and hydrogen. So in the chemical properties, first of all, we have already done with acid and bases reaction with metal. Whenever an acid or a base reacts with a metal, it gives you hydrogen gas with the formation of a salt. This is true for both acids and bases, but all chemical properties are not same for acids and bases. For example, in the next part we are going to react acid and bases with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. In that particular case, आपको सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन मिलेगा, बेसिस के साथ कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा. तो हर जगह आपको सेम नहीं मिलेगा. दिस इज नॉट एन एनालॉजी टू करेस्पॉन्ड टू एसिड्स एंड बेसिस कि सर जो एसिड्स का होगा क्या वो बेसिस का होगा, नहीं. Not everywhere it is true. So let's see. This was the reaction of acids and bases with metal. आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा? आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगा वहां पे. In the next part, reaction of acid and bases with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Metal hydrogen carbonates. Okay.
Metal carbonates, you already know. Sodium carbonate, this is a metal carbonate, okay. So you have to react an acid with this HCl plus Na2CO3. It gives you salt, NaCl, plus carbon dioxide plus water. Remember this for every time. When an acid reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate, metal carbonates means sodium is a metal, carbonate here CO3 2 negative, metal have one valency, that's why you are getting Na2CO3. I hope in N class you have learned all these things, how to make chemical formulas. If not, it's already available in this channel in the earlier previous lectures, so you can watch it over there. Whenever an acid reacts with a metal carbonate, it gives you sodium chloride as a salt, not sodium chloride every time, and carbon dioxide plus water. If you think there is something to do with the balancing of equation, you can do it over here. 2 chlorine, 2 sodium, O3, okay, H2, it's fine. Okay, beta. Whenever an acid reacts with a metal carbonate, it gives you salt, carbon dioxide and water. When it reacts with, see, HCl, when it reacts with metal hydrogen carbonate, here one valency of sodium is adjusted by hydrogen, NaCO3, sodium hydrogen carbonate, that's why it's called metal hydrogen carbonate. Then again also you are getting a salt plus carbon dioxide plus water. Okay, salt plus carbon dioxide plus water. Okay, so this was the second one, reaction of acids and bases with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. In metal carbonates, you are going to find only metal and carbonate. In metal hydrogen carbonate, you are going to find metal, hydrogen and carbonate. The product will always be same. Okay. There is a test to see whether carbon dioxide is produced or not. एक टेस्ट है हमारे पास, वो कैसे करते हैं देख लीजिएगा. ये आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है बेटा, कि जैसे आपके पास है ये लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा Ca, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेनेवर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये है बेटा आपका लाइम वाटर. जब भी आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा. अब ये मिल्की, ये कलरलेस होता है, ये मिल्की बन जाता है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया था, उस वाले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था. ये टेस्ट आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में. सो यू हैव टू बी लिटिल बिट अटेंटिव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ see, this was the reaction of acids and bases with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Now let's see, the third one is reaction of acids and bases with each other. एक दूसरे के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, एसिड और बेसिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक रिएक्शन होता है बेटा, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है बेटा, हमेशा सॉल्ट और वाटर. जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब हमेशा आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक, इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन reaction. This reaction is known as neutralization reaction. See, हमारे इस रिएक्शन को समझाने से पहले I'm going to give you an example. Whenever you get some burns in your upper abdomen part, आपको जब भी आपके स्टोमक में जलन होता है, तो डॉक्टर्स आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट दे देता है, जैसे जिसको हम एंटासिड बोलते हैं. बेटा क्या होता है, आपके बॉडी में जब एसिड थोड़ा एक्सेसली निकलना शुरू हो जाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एक बेस दे देता है. आपके पेट में ऑलरेडी HCl है, डॉक्टर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट दे देता है या सिरप दे देता है. ठीक, तो क्या होता है, आपके बॉडी में MgCl2 बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा. सॉल्ट एंड वाटर इट्स फाइन. तो आपका
न्यूट्रलाइज होके एसिड नॉर्मल हो जाता है, उससे आपका जलन फिर से खत्म हो जाता है. तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस टाइप के रिएक्शन बार बार पूछा जाता है. एक बार 10th क्लास के एग्जाम में ऐसे एक रिएक्शन दिया था एक एसिड और बेस का, और नीचे दिया गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. जब भी आप एक एसिड और एक बेस पाओगे रिएक्शन में, तो उस टाइप के रिएक्शन को आप हमेशा बोलोगे दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सी, इसके बहुत सारे और एप्लीकेशंस है आपके बॉडी में. जब कोई स्टिंग मारता है, जैसे हनी बी के हम बात करेंगे, तो वो हनी बी क्या करता है बेटा, आपके बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देता है. कौन सा एसिड? दिस. इंसेक्ट्स के स्टिंग में आपको ये बार बार मिलेगा ये वाला एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. ठीक ठीक है बेटा. एंड के स्ट्रिंग में भी यही मिलता है और उस बीस के स्ट्रिंग में भी यही मिलता है. जब ये फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है, जल्दी से उसको सोप से रगड़े या किसी बेकिंग सोडा से रगड़े. सर क्यों सोप और सोडा से क्यों रगड़े हम उस स्टिंग को? क्योंकि उस स्टिंग में जो एसिड है ना, बेस है. सोप और बेकिंग सोडा दोनों क्या है? बेस है. जब आप एसिड पे बेस रगड़ोगे तो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा. तो आपका जो स्टिंग से आपको पेन हो रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा. इज इट? सो दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे आपके हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो आपके फील्ड्स एसिडिक बन जाता है. उस वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, आपके जो हम बेनिफिशियल बैक्टीरियाज वो मार देते हैं. तो इसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके इसको बेसिक बना देते हैं, ताकि क्या हो जाता है इसमें आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज था वो दोबारा वहां पे आने लगते हैं. ठीक, तो इसके बहुत सारे और एप्लीकेशंस है. पीएच लास्ट में कंक्लूड करते समय हम इस पे और चर्चा करेंगे. ठीक, सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद देमसेल्व्स. एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है, और एक जनरलाइजेशन यहाँ पे है बेटा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक होगा ना बेटा, तो ये साल्ट आपका एसिडिक होगा. ये भी आप याद रख लीजिएगा. अगर आपका एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपका साल्ट क्या होगा बेटा? बेसिक होगा. बेसिक साल्ट प्लस वाटर. ठीक है सर, ये हमेशा याद रख लीजिएगा. दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो वो न्यूट्रल हो सकता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन आपको एसिडिक सॉल्ट देगा, और जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये रिएक्शन आपको बेसिक सॉल्ट देगा. ये भी आप याद रख लीजिएगा. दिस वाज एन एक्सटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. उसके बाद सी, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. सी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपके सिलेबस में उसी हिसाब से हम जा रहे हैं. यू कैन चेक इट विद हियर. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स. हाउ? सी, दिस इज एन एग्जांपल. HCl प्लस CaO. आपको फिर से क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस H2O. क्यों मिलेगा उसका भी मैं रीजन दूंगा आपको. दिस इज एन एसिड, this is a metallic oxide. Oxide of a metal. Calcium is a metal, is it? Yes. Now oxide of metal gives you salt plus water. Now you can balance it this way. 2, yes, 2 hydrogen, okay, 2 chlorine, okay, calcium, oxygen. See, reaction of acids with metallic oxides, how they are going to give you. This is an acid, this is a metallic oxide. Magnesium oxide, this is again a metallic oxide. Okay, aluminum oxide, this is again a metallic oxide, Al2O3. Okay, now whenever an acid reacts with a metallic oxide, it's giving you salt plus water. Why salt plus water? If you have studied neutralization reaction, उसमें एक analogy था बेटा, देख लीजिए. ये तो एसिड है आपके पास. मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा बेस होता है, बेसिक होता है. मेटेलिक ऑक्साइड्स हमेशा याद रखना, मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होता है. फिर इसमें कौन सा केस बन गया? न्यूट्रलाइजेशन का केस बन गया. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. हाउ? HCl is an acid. In calcium oxide, this is a metallic oxide.
metallic oxides are always basic in nature. So what happens here? Acid plus base, क्या बोला था हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था, जिसमें क्या बनता था? सॉल्ट और वाटर बनता था. इस केस में भी क्या बन रहा है आपको? एक तो सॉल्ट बन रहा है और दूसरा वाटर बन रहा है. ये जनरलाइजेशन आपको ये दिखता तो पहले नहीं है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे आप खुद देख लीजिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हियर. ओके, नाउ कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, इधर लिखा हुआ है हमने मेटेलिक ऑक्साइड. एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है और बेसिस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ. लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने कहा सर वो तो बेसिक होता है, बेस होता है, तो फिर से वही बन गया एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. Whenever you react a metal with metal oxide, it gives you salt and water. Okay, you can get some example also on the same thing. You will be able to understand each and everything. Okay, now we are moving towards reaction of base with non-metallic oxide. See, reaction of base with non-metallic oxide. मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होता है. बेटा देख लीजिए. आई एम अगेन गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, प्लस कार्बन का ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, ऑब्वियसली होगा सर, कार्बन इज अ नॉन मेटल, गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स in this reaction also calcium hydroxide is a base, remember, and calcium carbonate is a salt and this is a water. Sir, in this particular type of reaction also you are getting an analogy of base plus dash gives rise to salt and water. Are you getting something in your mind that neutralization reaction was there? Whenever you are going to react an acid with the base, you are getting salt plus water. Sir, is this an acid? Yes. What we said? We said metal oxides are basic in nature and non-metallic oxides are always acidic in nature. So when you call it an acidic nature, क्या होगा यहाँ पे? बेस प्लस एसिड क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए. दिस एनालॉजी आई एम यूजिंग हियर ओनली बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालॉजी. क्योंकि आपको एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद हुआ तो ये वाला रिएक्शन आप कभी नहीं भूल पाओगे. आप देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड में भी वही था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने बेस को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? आपको फिर से सॉल्ट और वाटर बन गया. यू कैन अगेन यूज टू मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर. मैं एक बार रिलेट करके आपको दिखा दूं बेटा, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा. एसिड हमने लिया था HCl, ठीक है, प्लस मेटल का ऑक्साइड हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था. यू कैन इवन टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. सी, it gives you calcium chloride plus water. ठीक है सर, this was acid. एसिड को हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था, मेटल ऑक्साइड. बेस को हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ. ओके, when you react acid with metal oxide, it gives you salt and water, calcium chloride plus water. Calcium chloride is definitely a salt. तो इसमें एक एनालॉजी हमने यूज किया कि सर एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर तो तब बनता था जब हम बेस के साथ रिएक्ट करता था. It gives you again an idea that metal oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Sorry, non-metallic oxide है, यहाँ पे ऑलरेडी बेस है तो ये एसिड होगा, तभी तो सॉल्ट और वाटर बना है. तो अब इसको ऐसे देख लीजिएगा, दिस वाज अगेन एन एसिडिक एंटिटी, दिस वाज अ बेसिक एंटिटी. आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, दूसरा भी यूज कर सकते हो. देख लीजिए, this reaction is always true. HCl plus MgO, magnesium oxide, this is again a metallic oxide. आप ऐसे भी कर सकते हो, magnesium chloride plus water. Is it right? Yes, this is again right. HCl is an acid, magnesium oxide metallic oxide है, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? salt plus water बनेगा. तो salt plus water. Sir, this is an acid. So obviously metallic oxide would be base. तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर बनेगा. So ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. So these were certain examples which were given in your book. So I have mentioned it all over here. तो हमारे दूसरे लेक्चर में हमने आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड इन बेसिस बताया, जिसमें हमने मेटल्स के साथ रिएक्ट करके देखा एसिड क्या बनाता है और बेसिस क्या बनाता है. और एक याद रखिएगा, इसमें हमने एक मिस किया दूसरे वाले में, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का
एसिड के साथ जरूर रिएक्शन होता है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी जब आप एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो फिर से सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। बट रिमेंबर मेटल कार्बोनेट्स जब बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। देयर विल बी नो रिएक्शन व्हेन यू लेट अ बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सिर्फ एसिड के साथ आपको देगा, बाकी मेटल के साथ दोनों हाइड्रोजन रिलीज करके आपको साल्ट बना देगा। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता था तो आपने उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था, सॉल्ट और वाटर दोनों में बन रहा था। एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना क्या बना देता है बेटा, फिर से सॉल्ट और वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दैट्स व्हाई व्हेन ए बेस गेट्स रिएक्टेड विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट गिव्स यू अगेन सॉल्ट एंड वाटर। हमने सारा रिएक्शन आपको करवा दिया। ऑल दीस आर अवेलेबल इन योर सिलेबस। हमने एक भी इंच सिलेबस से बाहर नहीं गया, but still if you have any confusion, any question, I am again mentioning the number here, two numbers 8491 957 847, yeah 9797228843. On both the numbers you can ask us questions anytime. So we are left with the salt, acids भी हो गया, bases भी हो गया, उनके chemical properties भी हो गया। तो I think we are left with only one topic, that is salts and their types, that will be we are going to do in the next lecture. Up to that, thank you so much. Have a nice day.